Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Anarpita Hari Purata Pumma Sada Hridaya Kandare Suratu Vakshachi Nandanaha Sada Hridaya Kandare Suratu Vakshachi Nandanaha Anarpita Charim Shirat Karunaya Vatirna Kala Anarpita Charim Shirat Karunaya Vatirna Kala Samarpayatam Unnato Jwalarasam Swabhakti Shriyam Samarpayatam Unnato Jwalarasam Swabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Luti. Kadamba Sandipitaha Hari Purata Sundara Kadamba Sandipitaha Sada Hridaya Kandare Suratu Vakshachi Nandanaha Sada Hridaya Kandare Suratu Vakshachi Nandanaha. May that Lord, who is known as the son of Srimati Shachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation ever offered before, the most sublime and radiant spiritual knowledge of the mellow taste of his service. Anarpita Charing Chirat Karunayavati Nakalo Samarpayatam Unnata Ujjalarasang Sabhakti Sriyam Hari Purata Sundaradhuti Kadamma Sandipitaha Sada Hridaya Kandare Suratu Vakshachi Nandana. This is the blessings of Srila Rupa Goswami upon everyone. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Sanga Rupa Kadamayam Dadati Sapadantika. We should pray to Rupa Goswami for his blessings so that we can understand what is the actual position of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful incarnation to bestow upon us Krishna Prema. Srila Rupa Goswami understood it. Srila Sarvabhauma Bhattacharya understood it, and we should take their viewpoint of view what they have studied about Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये वाला आज का हमारा श्लोक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अनर्पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा शची नंदना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार को लेके ये उनके लिए ये श्लोक जो है लिखा गया है कि शची देवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, वो मेरे हृदय के गहराइयों में मतलब स्थापित हो जाएं। और उनका रंग कैसा है? पिघले हुए सोने के समान है। और वो एक कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा को बरसाने के लिए आए हैं। और जितने कृपालु चैतन्य महाप्रभु हैं उतने कृपालु आज तक कोई अवतार हुआ ही नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये हमारे को ऊपर शिला रूप गोस्वामी की कृपा है। शिला रूप गोस्वामी कौन है? जिनका प्रणाम मंत्र बोला जाता है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो हमें शिला रूप गोस्वामी की कृपा लेनी चाहिए ताकि हम जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थिति को समझ सकें। वो कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु सबसे दयालु अवतार हैं। कृष्ण प्रेम प्रदान करने हमारे ऊपर आए। सबसे बड़ा धन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, कृष्ण प्रेम जो है, हरि नाम के रूप में हमें प्रदान करने आए। और ये बात जो है शिला रूप गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु हमें क्या देने आए हैं। शिला सर्वभौम भट्टाचार्य ये समझ गए और हमें भी उनके समझ को लेके चलना है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या समझा। वो आज हम सुनेंगे प्रभुपाद जी के मुख से। So Srila Rupa Goswami says
in the beginning, Sri Chaitanya Mahaprabhu was appreciated by Srila Rupa Goswami as Mahavadana avatar. There are many incarnations of Krishna. Keshavadhrita Meena Sharira Jaya Jagadisha Hare. Keshavadhrita Nishinga Rupa Jaya Jagadisha. Many incarnations. But this incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is Anarpita Charing Chira. The mercy of this incarnation is unlimited. It was never given before. That is Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. He distributed the most confidential part of love of Godhead. Although we are living in this fallen age, Kali Yuga, but he is giving the topmost platform of loving Krishna, Anarpita Charing Chira. Therefore he is supposed to be the most munificent incarnation. Namo Mahavadana, Krishna Prema Pradayate. He is giving directly Krishna Prema. सो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनके बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने क्या समझा, श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य ने क्या समझा, तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को जो सबसे पहले जिन्होंने कुछ श्लोक के माध्यम से उनका व्याख्यान किया वो रूप गोस्वामी थे, जिन्होंने बोला महावदन्याय अवतार है। महावदन्याय मतलब महा मतलब बड़े महान और वदान्याय मतलब कृपालु। तो चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय अत्यंत कृपालु अवतार है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसा कि हम गीत सुनते हैं जयदेव गोस्वामी का, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, कि वही केशव ने मत्स्य अवतार लिया, वही केशव ने नरसिंह रूप लिया। ऐसे बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये जो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है अनर्पिता चरीम चिरात। कहने का अर्थ है कि इनकी जो कृपा है मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और ऐसा अवतार पहले नहीं हुआ जिस अवतार ने इतनी कृपा को बरसाया। ऐसा पहले कोई इतना अवतार नहीं हुआ जितने इतनी कृपा बताई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं। और उन्होंने क्या बांटा है लोगों को, तो बता चैतन्य महाप्रभु ने बांटा है किन लोगों को, कलयुग के लोगों को, जो पतित लोग हैं। ऐसे पतित लोगों को इतना बड़ा धन जो बांट दे वो है चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं ये बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु अवतार है। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो अवतार हैं जिन्हें अनर्पिता चरिम चिरात बोला गया। मतलब इन्होंने अपनी कृपा को अनलिमिटेड वे में बांटा, अनलिमिटेड वे में अपनी कृपा को बांट रहे हैं। और किन लोगों को बांट रहे हैं? कलयुग के पतित जीवों को। हम जैसे कलयुग के पतित जीवों को जो अपना कृष्ण प्रेम बांट दे, ऐसे दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया अनर्पिता चरीम चिरात। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में आता है नमो महावदन्याय। परम दयालु अवतार है चैतन्य महाप्रभु, परम दयालु अवतार। क्या दे रहे हैं? सीधा सीधा कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। योग्यता है नहीं है, सीधा सीधा कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु। It is very difficult to understand Krishna and what to speak of his loving affairs. It is very difficult. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे तो कृष्ण भगवान को समझना बड़ा कठिन है, और भगवान के प्रेममयी संबंधों को तो समझना और भी कठिन है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसे प्रेम को प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदतामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्। Krishna personally says that it is very difficult to understand him. Actually it is so.
But Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is so unlimited that he is helping not only to understand Krishna, but also he is giving directly love of Krishna. And this supermost platform of love as it was experienced by the gopis. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे तो भगवान को समझना बड़ा कठिन है और उनके प्रेममय संबंधों को समझना बड़ा कठिन है। भगवत गीता में बोला गया, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित वेत्ति माम तत्वतः। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात खुद कही है कि उनको समझना आसान नहीं है, रेयर ह्यूमन ही समझ पाएगा, मतलब रेयरेस्ट, और वैसा है भी। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी है कि वो केवल हमें कृष्ण भगवान को समझने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि भगवान कृष्ण का प्रेम भी हमें प्रदान करेंगे। और वो कौन सा प्रेम? जो गोपियों ने अनुभव किया, जो गोपियों ने अनुभव किया, उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करेंगे। The gopis dealing with Krishna is considered to be the topmost. Chaitanya Mahaprabhu, he recommended Ramma Kachi Dupasana Brajavadhu Vargabhija Kalpita. Brajavadhu, the gopis, the dancers of Vrindavan, they worship Krishna in the topmost loving affairs. They did not know anything but Krishna. For Krishna they could sacrifice anything. Their honor, their prestige, everything. Their husband, their sons, family. That is the gopis' standard. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu's incarnation is accepted by Srila Rupa Goswami in many verses. One of the verses is here, Anarpita Charinchira, Karunayavati Nakalo. So we should take shelter of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. That is the blessing of Rupa Goswami. तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला कि उन्हें समझना रेयरेस्ट व्यक्ति समझ पाएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने, अब जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी है कि व्यक्ति केवल कृष्ण को समझेगा ही नहीं, उनका टॉप मोस्ट प्रेम जो गोपियों द्वारा अनुभव होता है उसको भी प्राप्त कर लेगा। अभी ये गोपियां कौन है? गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ डील कर, तो बता रहे हैं ये जो गोपियां हैं ये भगवान कृष्ण का मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला। क्या? रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। व्रजवधु गोपियां जो हैं वह कृष्ण को किस भाव में प्रेम करती थी? माधुर्य भाव में प्रेम करती थी कृष्ण को। वह कुछ और नहीं जानती थी, कृष्ण बस कृष्ण जानती थी। और भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, उसके लिए अपना सर्वस्व, अपने पति, अपने बच्चे, अपना परिवार, सब कुछ त्याग देने के लिए तत्पर थी। ये है गोपियों के प्रेम का स्टैंडर्ड कि भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो श्रील रूप गोस्वामी ने उनका कई श्लोकों में उनका गुणगान गाया, और उनमें से एक श्लोक ये वाला है, अनर्पिता चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। इसलिए हमें इन दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो बता रहे हैं वो रूप गोस्वामी आगे क्या कहते हैं वो सुनिए। He says, Hori Purata Sundara Druti Kadamma Sandipita Sada Hridaya Kandare Suratuva Sachinandana. He is giving his blessing that this form of the Supreme Personality of Godhead, Hari, may always remain within you, on the core of your heart. If we simply keep Sri Chaitanya Mahaprabhu within our heart, then it will be very easy to understand what is Krishna. Because if you understand Krishna, then your life is successful. Janma karma sadibham me jujanati tattva. That is only. Our Krishna consciousness movement means
Just try to understand Krishna. Then your life is successful. Krishna says, anyone who understands me, why I come here, what is my activity, Takta dehang punardana, he becomes liberated. After giving up this body, he does not accept any material body. In his own spiritual body, he goes back to home, back to God. This is our Krishna consciousness. हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वह चैतन्य महाप्रभु, इनकी कृपा हमें प्राप्त करनी है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है, महादयालु अवतार हैं। इस कलयुग के पतित जीवों के लिए कृष्ण प्रेम प्रदान करने हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट धन है। तो गोपियों के प्रेम जैसा प्रेम हमें प्रदान कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, जब हम उनकी शरण में जाएंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, हरि पुरुट सुंदर द्युति कंदम्द संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा शचीनंदना, की वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में कि चैतन्य महाप्रभु हृदय की गहराई में बस जाएं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में बसा लेंगे तो कृष्ण भगवान को समझना आसान हो जाएगा। ऐसे कृष्ण भगवान को रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट व्यक्ति समझ पाएगा, लेकिन अगर हमने चैतन्य महाप्रभु को अपने हृदय में बसा लिया तो कृष्ण भगवान समझ में आएंगे, और जब भगवान कृष्ण समझ में आएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, क्योंकि ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है या ये जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण को समझना है। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये इसी के लिए है कि हम कृष्ण को समझें और अपना जीवन सफल बनाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मुझे समझ जाएगा, मेरे दिव्य कार्यों को, मेरे अवतार को, तो वो मुक्त हो जाएगा और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि मेरे भगवत धाम में आ जाएगा। ये है कृष्ण भावनामृत। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को हृदय में बसाना है ताकि हम भगवान कृष्ण को समझ सकें। So, if you don't go through Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, it will be very difficult to understand Krishna. That is practical. Just like you young boys and girls from Western countries, you have taken up Krishna so seriously. Why? Because we are trying to understand Krishna through Chaitanya Mahaprabhu. So, we should follow this principle. There will be no difficulty to understand Krishna. And as soon as you understand Krishna, your life is successful. Of course, we cannot understand Krishna fully. As far as possible, at least if we understand that Krishna is the Supreme Personality of God, this much is sufficient. सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से नहीं जाएंगे तो हम भगवान कृष्ण को समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे शिष्य गण हैं, जो युवा लड़के और लड़कियां विदेशियों में, उन्होंने कैसे कृष्ण भावनामृत को इतना गंभीरता से ले लिया। क्यों? क्योंकि वह भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समझ रहे हैं। तो अगर हम भी यही सिद्धांत का पालन करें तो भगवान कृष्ण को समझने में कठिनाई नहीं होगी, और जैसे ही हमने कृष्ण भगवान को समझ लिया तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन हम कृष्ण को पूरी तरह नहीं समझ सकते। जहां तक संभव है, कम से कम अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं तो भी काफी है। This much is sufficient. Krishna Su Bhagavan Swayam. Krishna says in the Bhagavad Gita, Matta Paratanam Nanyat Kinti Jasti Dhananjaya. Aham Sarvasya Prabhava. Aham Adidihi Devanam. These things are there, already stated. But the so-called scholars and politicians, they misinterpret
in a different way and mislead the people. That is going on. Therefore, in spite of Bhagavad Gita being read all over the world for the last 200 years, not a single person became a devotee of Krishna. This is the defect. So, let us try to understand Krishna through Chaitanya Mahaprabhu. And as we have repeatedly said, that through Chaitanya Mahaprabhu you understand Krishna and spread this cult all over the world. People are suffering for want of knowledge of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण को समझना है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत गीता में भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय अहम सर्वस्य प्रभो अहम आदिर ही देवानाम। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने बारे में व्याख्या करी है ना। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान, वह भी इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण परम भगवान है और लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए बहुत 200 वर्षों से लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भक्त नहीं बना। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण भगवान को समझ ही नहीं पाते। इसलिए महाप्रभु के माध्यम से समझना है, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से समझना है। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझकर उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रचार करेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस ज्ञान को ढूंढ रहे हैं और नहीं प्राप्त कर पाने के कारण दुखी हो रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझकर लोगों तक पहुंचाना है। So this movement especially meant to establish the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that you become, every one of you become a guru. How to become guru? Jare dakho tare kaho Krishna upadesh. Simply, that qualification is sufficient. Don't adulterate the Krishna upadesh. Just simply present what Krishna says as it is. Then every one of you will become a guru. Don't adulterate. I think, in my opinion, these nonsense things should be given up. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझकर प्रचार करना है और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित करना है ना। इसलिए महाप्रभु के आदेश से ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि महाप्रभु ने बोला है कि हर एक को बनना है, गुरु बनना है। तो कैसे बन सकते हैं गुरु? तो बता रहे हैं गुरु बनने के लिए केवल एक ही योग्यता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आपकी केवल इतनी सी योग्यता चाहिए कि जो कृष्ण का उपदेश है उसको यथारूप प्रस्तुत करो, जो भगवान ने कहा है उसको यथारूप दो लोगों को, तो आप गुरु बन जाएंगे। इसको मिक्स मत करो ऐसा कि मेरे विचार से, मेरे हिसाब से, नहीं। इन सब चीजों को हटा के जो भगवान कृष्ण ने बोला है उसमें बिना मिलावट किए लोगों को देना, तब आप गुरु बन जाएंगे। We should always be aware that we are insignificant creature. Our opinion and thinking has no value. This should be the first principle. Why should you give opinion on the words of Krishna? Are you more authoritative person than Krishna? This is foolishness. To try to become more than Krishna. There are so many rascals. They present that now we have advanced, we know more than Krishna. So be saved from these rascals. Then you will understand Krishna, and through Chaitanya Mahaprabhu you will understand what is the position of Krishna, what is your relationship with Krishna, what is the ultimate goal of life. These things will be clearly exhibited. तो महाप्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसलिए इन चीजों से बचना है कि भगवान कृष्ण के उपदेश को एज इट इज जो बोलेगा वह गुरु बन सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि हम लोग क्या हैं, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। हमारा
विचार की क्या वैल्यू होगी अगर हम बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे विचार से? नहीं, हमारे विचार की कुछ वैल्यू नहीं है। इसलिए हमारा पहला सिद्धांत ये होना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान के शब्दों पे अपनी ओपिनियन ना दें। क्या हम भगवान कृष्ण से बढ़ के हैं? नहीं है। फिर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कई ऐसे लोग हैं, मूर्ख लोग, जो अपने आप को कृष्ण से बड़ा मानते हैं और वो सोचते हैं कि हम ज्यादा जान गए भगवान कृष्ण से। ऐसे लोगों से बचना है जो अपनी सिद्धांत देने लग जाएं, अपनी ओपिनियन देने लग जाएं। इसलिए हमें बचना है ऐसे लोगों से। और कैसे समझना है भगवान कृष्ण को? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। जब हम चैतन्य महाप्रभु से माध्यम से जाएंगे, भगवान कृष्ण को समझेंगे, और फिर हमारा और भगवान कृष्ण का संबंध बनेगा, जो कि इस जीवन का परम उद्देश्य है। तो हमें समझ आएगा कि मेरा और भगवान का क्या संबंध है। And Sri Chaitanya Charitamrita is written for this purpose, so that a person who is serious about Krishna consciousness may understand Krishna through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is one. You cannot jump over Krishna consciousness without going through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And to go through Sri Chaitanya Mahaprabhu means to go through the 6 Goswamis. This is parampara system. Therefore, Narottam Das Thakur says, तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें भगवान कृष्ण को समझना है, इसलिए चैतन्य चरितामृत लिखी गई। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में गंभीर बनना चाहता है, उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी होगी, है ना? और कृपा प्राप्त करके भगवान कृष्ण को समझना होगा, ये जरूरी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत लिखा गया। हम सीधा कृष्ण भावनामृत बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे कृष्ण भावनाभावित नहीं हो सकते, ये बात समझिए। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना मतलब 6 गोस्वामियों के माध्यम से जाना, इसको बोलते हैं परंपरा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, এই ছয় গোসাই যার তার মুই দাস, দাসাবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস. This is parampara system. You cannot jump over. You must go through the parampara system. You have to approach through your spiritual master to the Goswamis, and through the Goswamis you will have to approach Sri Chaitanya Mahaprabhu, and through Sri Chaitanya Mahaprabhu you have to approach Krishna. This is the way. Therefore Narottam Das Thakur said, এই ছয় গোসাই যার তার মুই দাস. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो 6 गोस्वामियों के माध्यम से जाना होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, यही 6 गोसाई जार तार मुई दास, ते सबार पद रेणु मोर पंचग्रास। तो हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, परंपरा के माध्यम से जाना होगा। हमें अपने गुरु के माध्यम से 6 गोस्वामियों को, और 6 गोस्वामियों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण को अप्रोच करना है। इसलिए नित्य नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, यही 6 गोसाई जार तार मुई दास, मैं दास हूं 6 गोस्वामियों का। We are servant of servant. That is Chaitanya Mahaprabhu's instruction. Gopi bhattu padakamalayo daso daso dasanu daso. The more you become servant of the servant, the more you are perfect. And if you all of a sudden want to become master, then you go to hell. Don't do that. This is the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you go through the servant, then you are advanced. And if you think that you have now become master, then you are going to hell. This is the process. Dasa dasanu das. Chaitanya Mahaprabhu says. So servant, 100 times servant now, that means he is advanced. He is advanced. And one who is becoming directly master, then he is in hell. Sanatpita charing chira. तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हमें सेवक बनना है, 6 गोस्वामियों को सेवक बनना है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बात बोली, गोपीर भरतु पद कमले और दास दासानुदास। हम लोग कौन है? भगवान कृष्ण जो गोपियों के प्रिय हैं, पालन करता है, उनके दासों के दासों के दास। तो जितना हम दास बनेंगे उतना परफेक्ट होंगे। और जिस समय हमने सोच लिया कि मैं मास्टर हूं, उन नरक जाएंगे। तो इसलिए हमें ये नहीं करना। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। अगर आप दासों के दासों के दासों के दास बनेंगे तो एडवांस होंगे, और अगर आपने सोचा कि मैं मास्टर हूं तो हम नरक में जाएंगे। ये प्रोसेस है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, सर्वेंट सर्वेंट 100 गुण टाइम सर्वेंट, मतलब जो बोलेगा मैं 100 टाइम सर्वेंट हूँ सर्वेंट्स का, किसी ना किसी सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, मैं ऐसे 100 बार आगे ले चलो उसका सेवक हूँ, तो मैं एडवांस हूँ। और अगर कोई मास्टर बनेगा तो वो नरक में जाएगा। We should always remember the instruction of Srila Rupa Goswami. Therefore, we pray, Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale. Our mission is to establish the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is our business. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale. Srila Rupa Goswami did it. He has given up so many books, especially Bhakti Rasamrita Sindhu, which you have translated into English as Nectar of Devotion, to understand the science of devotional service. This is the greatest contribution of Srila Rupa Goswami, how to become a devotee. How to become a devotee. It is not sentiment, it is science. This Krishna consciousness movement is a great science. Jad vijnana samannitam. Jnanam me paramam guhyam. Jad vijnana samannitam. It is not sentiment. If you take it as sentiment, then you create disturbance. That is the instruction of Sri Rupa Goswami. तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझना है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना है कि गुरु बनिए, कैसे, बिना मिलावट किए भगवान कृष्ण के उपदेश को यथारूप प्रस्तुत करिए, और परंपरा के माध्यम से हमें कृष्ण भगवान को समझना है। अपने गुरु के माध्यम से 6 गोस्वामियों को अप्रोच करना है, 6 गोस्वामियों से चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण भगवान। तो इसलिए जंप नहीं करना है हमें, है ना, और दासों का दास बनना होगा। तो ये बात समझाते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को जो रूप गोस्वामी ने बोली है उसको हमेशा स्मरण रखें कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तभी तो हृदय में समाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु को समझाने वाले श्री रूप गोस्वामी के लिए प्रार्थना बोलते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु को स्थापित किए हैं, आप उनके मिशन को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आप जान गए कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या है। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के भाव को स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने इसके लिए हमें बहुत सारी पुस्तकें दी हैं, और उन पुस्तकों में एक है भक्ति रसामृत सिंधु, जिससे हम भक्ति की विज्ञान को समझ सकते हैं भक्त कैसे बना जाए। ये भक्ति कोई भावुकता नहीं है, ये बड़ा विज्ञान है। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी एक बड़ा विज्ञान है, ये कोई भावुकता नहीं है। अगर आप इसे भावुकता के रूप में देखेंगे तो केवल आप आखिर में हम सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। He said, श्रुति स्थिति पुराणादि पांचरात्रि की विधि बिना वैकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पत। तो यहाँ पे लेक्चर रुक जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को केवल भावुकता के रूप में ले लिया, इसके विज्ञान को नहीं समझा और कुछ भी करते रहे, तो केवल समाज में उपद्रव मचाएगा। तो इस प्रकार से आज की जो मुख्य शिक्षा थी वो यही थी कि हमें चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण को समझना है। तो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा रिकॉर्ड हुआ होगा, उस समय की बात है पुरानी, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ उसमें महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिली।